So Yes, why go on. these problem arises mean question arises first that why this problem arises because we have limited resources and unlimited wants. Now, can you explain this? What do you mean by limited resources and unlimited wants? So as sir, limited resources है बस हो तो गया. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर आवाज नहीं आ रही ढंग से. तो बेटा आवाज चेंज कर लो अपने फोन के अंदर. आई बिलीव सबको आ रही है. Yes. Where have you gone? So I'm here only. Then continue, So please. limited resources and unlimited wants means sir रिसोर्सेज मान लो अगर एक कंपनी जैसे पीपीसी में अपन ने पढ़ा था कि रिसोर्सेज तो उतने ही रहेंगे और अगर अपन चेंज करते हैं तो मतलब कैसे बताऊं. कोई है जो इसको एक्सप्लेन करेगा प्लीज? Anyone? What do you mean by limited resources and unlimited wants? एक जनरल एग्जांपल के साथ कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो प्लीज. Sir, can I? Yes, go for it. Name yourself, please. Sir, I am Piyush Sethia. Yes, Piyush, go for it. Sir, suppose थोड़ा I लाउडली am बोलो a बेटा. पीयूष, shopkeeper. थोड़ा लाउडली, थोड़ा लाउडली. Okay, sir. Sir, suppose I am a shopkeeper. Yes. And sir, there are 20 people who want to buy a pencil, but I Okay. have only 20 pencils. Okay. So this is an example that resources are limited, but wants are many, needs are many. Okay. So 20 people have gone to buy a pencil, and there are how Yes. many people out there? There are how many pencils out there in the market? And I have 10 pencils to give So them. that is limited resources and unlimited wants. Unlimited wants. Yes. Do you think that this is the right example? The class. सर मैं Yes, you please, because this is an example of demand and supply, not the limited resources and unlimited wants. Okay, yes, I Riya give Mukesh, only go for general it. example. सर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पॉकेट मनी हमें जितनी मिल रही है वो इतनी इनफ नहीं है कि हम अपनी हर एक विश को पूरी कर सके. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 रुपए हैं तो 10 रुपए से मेरे पास मतलब जो मेरे को सबसे ऊपर जो हमारी विश है जैसे कि मेरे को पेन खरीदना, कॉपी खरीदना, ये सब खरीदना और जो मेरी सबसे ज्यादा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रफ कॉपी है तो मैं ना सबसे ऊपर पेन को लूंगी तो ये हमारा हो जाएगा. हाँ, तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वॉन्ट्स जो है वो क्या क्रिएट करता है? बिकॉज ऑफ लिमिटेड कि रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स. सर हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन वो लिमिटेड हैं. अब मैं ना उससे हर एक विश को पूरी नहीं कर सकते. जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसी से हम अपनी जो बहुत मतलब बहुत जरूरी की जो चीज है, बहुत जरूरी की जो वांट्स है वो सब पूरी कर सकते हैं. ऐसे तो हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, हमें हाँ, तो सब कुछ चाहिए. ये एक प्रॉब्लम अराइज करता है. उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रॉब्लम? दैट वर्ड, आई वांट दैट वर्ड. The problem of choice. Problem of choice, and it is called scarcity, right? Yes, very good, Vaini and Ushan Khatri, well done, and Riya Mukheja, well done. You have make us understand this properly with an example. So now, yes, Raghav Modi, continue. So then what are the central problems of economy? Please, can you please be louder? Please be louder. So now Yes. what are the central problems of economy? What Okay. to produce, how to produce, and for whom to produce. Okay. And then we come to what to produce. So what to produce से हमें दो प्रॉब्लम्स दिखती है कि एक तो क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है. Okay. एंड तो सबसे पहले एक इकोनॉमिक का चैलेंज होता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कि कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं या कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, पीस टाइम गुड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है या वॉर टाइम गुड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है. और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है उस कंट्री की जो सिचुएशन है उस टाइम पर. What do you mean by consumer goods and what do you mean by capital goods?
सर Don't give me the कंज्यूमर example गुड from here. Okay. सर कंज्यूमर गुड जैसे शुगर, व्हीट, घी। इसको हम और कंज्यूमर गुड्स क्यों कहते हैं? सर क्योंकि ये नॉर्मली सबके काम आते हैं, एवरीबॉडी कंज्यूम इट। Okay, that's why it is a consumer good. And why machinery and tractors are capital goods? सर ये टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, सो अगर मैं कहूँ कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है, ये बिकॉज कैपिटल फॉर्म करते हैं किसी भी बिजनेस का। आप लोग में से काफी स्टूडेंट्स हैं जो साथ में अकाउंट्स भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप अकाउंट्स के अंदर कैपिटल के ऊपर बात करते हो तो वो कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स होते हैं। और वो क्या होते हैं? मशीनरी, ट्रैक्टर, जो भी एक ऐसा कैपिटल जो कि काफी सालों तक काम आता है, जिसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन वैल्यू लग सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स, राइट? Any of the accounts student, please can you correct me, or if I am wrong, and if this is right, can you please Yes, say me? sir. Is this right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, chalo, thank These you. are Okay, so now continue, Raghav. sir after that we solve the what to produce, then problem comes to how much to produce। Okay. सब पीस टाइम गुड ज्यादा प्रोड्यूस करने या वॉर टाइम गुड ज्यादा प्रोड्यूस करने। अगर एक कंट्री वॉर की सिचुएशन में है तो वो वॉर टाइम गुड्स पे ऑब्वियसली ज्यादा ध्यान देगी पीस टाइम गुड्स से। Anyone who can give the example related to wartime goods and peacetime goods? अभी रिसेंटली इंडिया का अगर सिचुएशन उठाओगे तो आपको एग्जांपल मिल जाएगा। दैट्स व्हाई से करंट अफेयर्स पे ध्यान दो। यस राहुल। तो वॉर टाइम गुड्स तो जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह, जैसे अभी अपने इंडिया में राफेल आया है, पीस टाइम में आया है पर आया है, वो एक वॉर टाइम गुड है। नहीं, और ये पीस पीस टाइम टाइम गुड है। जैसे इज फूड दिस द प्रोडक्ट, पीस टाइम इन इंडिया गोइंग ऑन? सेमी नहीं, पीस टाइम कह सकते सेमी हैं पीस टाइम कह सकते हो, बिकॉज राइट नाउ वी आर इन अ क्योंकि सिचुएशन। डिक्लेयर्ड वॉर नहीं है। डिक्लेयर वॉर नहीं है, बट वी आर मूविंग थ्रू दिस। एम आई राइट? या यस सर। ठीक है, हम लोग चाइना बॉर्डर पे भी मतलब बोलते हैं ना कि एक वॉर काइंड ऑफ क्राइसिस पे जा रहे हैं, और हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर पे तो हमेशा ही रहते हैं। इट्स लाइक यूनिवर्सल। Okay, that's why we are buying, because China is bigger opponent, और उससे अगर आपको फाइट करना है तो आपके पास उतने क्या बोलते हैं उसको, वॉर टाइम के हिसाब से आपके पास होने चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल। तो इसीलिए आप उसको बाय कर रहे हो, एंड दिस इज द राइट टाइम व्हेन वी आर गेटिंग ऑल द थिंग्स। ओके, तो चलो, ये एक परफेक्ट एग्जांपल था पीस टाइम और वॉर टाइम गुड्स का। कंटिन्यू राघव। एंड देन हाउ मच टू प्रोड्यूस हो गया। एंड देन नेक्स्ट प्रॉब्लम केम्स हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है जहाँ लेबर ज़्यादा यूज होती है, मशीनरीज कम यूज होती है। और कैपिटल इंटेंसिव वो होती है जो जहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज होती है और लेबर कम यूज होती है। फॉर एग्जांपल चाइना में लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और अमेरिका और जापान जैसी कंट्रीज में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? चाइना में या इंडिया में जो है वो लेबर इंटेंसिव है, और अमेरिका और जापान जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर क्योंकि चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर Okay. वहाँ मशीनरी ज़्यादा यूज होएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और कैपिटल इंटेंसिव यूएसए और जापान में पॉपुलेशन कम है अकॉर्डिंगली, सो वहाँ पे मशीनरी ज़्यादा यूज होती है। Okay, very good, well done. चलो कंटिन्यू नाउ। आई बिलीव यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो जैसे मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, वैसे आप अपने क्वेश्चन जो भी ब्रेन में आते हैं वो पूछें। दैट्स व्हाई दे आर लीडिंग, दे आर द टीचर्स फॉर यू राइट नाउ। ओके, सो यू आस्क इन बिटवीन, यू आर फ्री टू आस्क। यस, कंटिन्यू राघव। And then the problem comes for whom to produce. So every economy have main two sectors, rich and poor. और for whom to produce is a big problem, because अगर हम सिर्फ rich के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो फिर पुअर्स का उस कंट्री में क्या होगा। अगर सिर्फ पुअर्स के लिए प्रोड्यूस करेंगे सो वो ऑब्वियसली कम प्रॉफिट पे सेल की जाएगी। अगर वो कम प्रॉफिट पे सेल की जाती है, उस कंट्री के अंदर प्रॉफिट कम है, तो कोई भी बाहर की कंपनी आ गई या उसी देश की कंपनी उधर क्यों इन्वेस्ट करेगी। Any question from anyone over here?
एक बार प्लीज रिपीट करना। प्लीज रिपीट इट। तो अब हर कंट्री के अंदर मेन दो सेक्टर्स होते हैं, पुअर और रिच। और अगर एक कंट्री के अंदर अगर सिर्फ रिच के लिए चीजें प्रोड्यूस की जाती है तो वहां पर पुअर्स का क्या होगा? और अगर सिर्फ पुअर्स के लिए चीजें प्रोड्यूस की जाती है तो वो ऑब्वियसली कम प्रॉफिट पे सेल की जाएगी, और कम प्रॉफिट पे सेल की जाएगी तो कोई भी कंपनी वहां इन्वेस्ट क्यों करेगी उस इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि वहां ऑलरेडी कम प्रॉफिट है। समझ आया हाँ समझ आया, लेकिन इसका कोई एग्जाम्पल? सर? एग्जांपल? इंडिया इंडिया क्या करता है? इंडिया किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है? रिच सेक्टर के लिए कि पुअर सेक्टर के लिए? सर इंडिया दोनों के लिए ही कर रहा है, रिच के लिए भी कर रहा है, पुअर के लिए भी कर रहा है। कैसे? सर पुअर्स के लिए जैसे रेलवे जैसी सर्विसेज है हम्म। वो पुअर्स के लिए है, तो और वहां पे रिच रिच के पीपल लिए। बैठते नहीं है? सर वहाँ रिच पीपल भी बैठते हैं, बट पुअर्स के लिए वो पुअर्स के लिए है, और क्या रिच है पीपल पुअर के के लिए लिए? क्या है, मेरे को वो क्या है वो वर्ड वो चाहिए। पुअर के लिए सर्विस, क्या सर है? रेलवे की सर्विस जो है। हाँ हाँ, उसमें पुअर के लिए क्या है उस सर्विस में? देयर इज अ वर्ड इन इकोनॉमिक्स, एनीवन हु नोज इट। पुअर को क्या मिलता है रेलवे के अंदर? रिजर्वेशन? नहीं, रिजर्वेशन तो आप भी ले नहीं सकते हो, नहीं मैं भी ले नहीं। सकता हूँ, कोई भी ले सकता है। हाँ सर, हाँ हाँ, ओके। सेम टू सेम चीज गैस पे प्रोवाइड करी जाती है सिलेंडर्स पे। व्हाट इज दैट वर्ड? हाँ Subsidy. सब्सिडी। Subsidy. यस यस हाँ यस। तो पुअर के लिए गवर्नमेंट एक अमाउंट जो है, जो एक टिकट पे खर्चा होना चाहिए, उसके ऊपर सब्सिडी दे देती है। अगर आजकल आप टिकट खरीदोगे और आपने वहां पे लिखा नहीं है कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, तो आपके टिकट पे भी लिखा हुआ आता है कि इस टिकट का एक्चुअल अमाउंट इतना है और आपसे इतनी सब्सिडी कम करके अमाउंट लिया जा रहा है। ठीक है, आजकल हर टिकट पे लिखा जाता है, मतलब आजकल इन द सेंस कोरोना से पहले अभी तो कोई टिकट खरीद ही नहीं रहा, जब ट्रेन चलेगी तो वापस आपको दिख जाएगा उसके ऊपर। ऑलराइट, इंडिया इज अ कंट्री विच इज प्रोड्यूसिंग फॉर द रिच एंड द पुअर बोथ। राइट राघव? यस सर। Okay, continue then. I believe everyone has understood. रिप्लाई करो यार। Reply is waiting, come on. Yes, sir. सर समझ आ रहा है। यस सर। Chalo, very good, continue. So now the solution of this economic problem. So इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इनका सॉल्यूशन तीन टाइप की इकोनॉमी होता है, उनके अंदर होता है। सो मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। Again, the सो centrally planned economy की spelling wrong है बेटा, पीछे जाओ, पीछे जाओ, get back to the last slide. यस सर। Write the spelling of centrally properly. CENTRALLY. एक मिनट सर। CENTRALLY. While you are preparing your presentations or whatsoever, the way you are giving it, try to be correct. CENTRA, E नहीं लगेगा। ओके हाँ, now it is okay. Save it. सर, Control S. Yes, now continue. There are three kind of economies: market economy, centrally planned economy, and mixed economy. तो यहाँ पर हाँ सर। राघव मोदी आप आगे बढ़ो, उससे पहले मैं अपने क्लास से एक सवाल करना चाहूंगा यहाँ पर बैठे हुए जो है। आई विल जस्ट आस्क हैपोथेटिकली टू निज। निज जानी? Yes, sir. यस, इंडिया इज व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी? सर ये जो भी तीन था उनमें से हाँ, it is a centrally planned economy, it is a mixed economy, or it is a market economy, free market economy. This proves कि आपने Mixed. किताब नहीं खुली है। अच्छा, very good, well done. Sorry, it's a mixed economy. Mixed. Yes. Why it is a mixed Yes, sir. economy? सर मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे है? कैसे है?
कोई भी मालूम एग्जांपल नहीं देके सर, बता दो। सिर्फ ऐसा एग्जांपल तो फिर यस, उशान दे सर रहा है। एक सेकंड। वेट अ मिनट, यस उशान इज गिविंग इट। उशान गो फॉर इट। Good evening, sir. गुड इवनिंग, हाँ बोलो। Sir, India is a mixed form of economy because इंडिया में हर तरह के लोगों का ध्यान रखा जाता है, रिच का भी ध्यान रखा जाता है, पुअर का भी ध्यान रखा जाता है, और जो मिडिल क्लास पीपल है उनका भी ध्यान रखा जाता है। अच्छा, सबकी इसको भी ये एक्चुअल डेफिनेशन है क्या मिक्स्ड इकोनॉमी का? राहुल, नहीं नो सर, सर। एक्चुअली तो नहीं है। राहुल। सर इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि अगर गवर्नमेंट को लगता है तो वो इंटरवीन करती है, नहीं तो वो मार्केट को फ्रीली ऑपरेट करने देती है। हाँ, दैट्स व्हाई इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? देयर आर प्लेसेस वेयर गवर्नमेंट इंटरवीन्स, देयर आर प्लेसेस वेयर दे आर नॉट इंटरवीनिंग इनटू इट। लाइक रेलवे में गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, ठीक है, सिलेंडर्स में रेलवे ये गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, पर फ्री मार्केट के अंदर जैसे इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें गवर्नमेंट काम करने देती है उनको, कैसे वो काम करना चाहते हैं, वो मार्केट मैकेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, डिमांड और सप्लाई पे। ओके, तो चलो आ जाओ राघव मोदी, मैंने आधा काम आपका करवा दिया है स्टूडेंट से, अब आप आगे समझाओ। फ्री मार्केट इकोनॉमी। हाँ बोलो। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? फ्री इकोनॉमी भी कह सकते हैं मार्केट इकोनॉमी को। अब यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सब कंपनीज डिसाइड करती हैं। यहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ओके, और जैसे उसको वो कौन सी डिसाइड कंट्री कैसे है? करते हैं? सो यूएसए और यूएसए के अलावा वो आपने लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसके अलावा हांगकांग है मे बी, और जापान है। सिंगापुर है। नहीं, सिंगापुर है, हांगकांग है। ओके चलो, वेरी गुड, कंटिन्यू। सो यहाँ पे जो कंपनीज होती है वो कैसे डिसाइड करती है? वो डिसाइड करती है डिमांड और सप्लाई के बेस पे, कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और उस चीज़ की कितनी सप्लाई है। उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज़ कितनी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और इस इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम कहाँ आती है? इस इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है कि सब अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोच रहे होते हैं यहाँ पे। सर सर, हाँ, isn't this topic part of organization of economies? दिस इज बेसिकली द फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, जो पहला इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है ना। No sir, actually problem is this is the topic that I have explained in my video. हाँ, तो आप करना, आप अपने तरीके से करना ना, सबका अपना तरीका होता है। Okay sir. ओके, कंटिन्यू। एंड वो किसके लिए चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं? वो उन्हीं लोगों के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो उनको खरीदने की विल कर रहे हो, और मतलब जो उनको खरीदने की इच्छा रखते हैं, और जो उनको सबसे बेस्ट प्राइस देता है वो उनको चीज़ें बेच देते हैं। ओके, तो ये तो मार्केट इकोनॉमी हो गई। इसका एग्जांपल हो गया यूएसए। ठीक है बेटा, अब एक काम करो, आप मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और जो फाइनल लास्ट टू इकोनॉमी है आपके मिक्स्ड इकोनॉमी, उसका एक खाली एक डेफिनेशन बता के आगे बढ़ो, ताकि आप मेरे को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में जल्दी से बताओ, क्योंकि आपका टॉपिक वो है, मुझे वहां तक जल्दी पहुंचना है। तो सेंट्रल प्लान्ड सो और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम डेफिनेशन जो है वो हमें कल, जब भी मतलब कल ऑब्वियसली राहुल पवार बढ़िया से और एक्सप्लेन कर देगा इसको, ठीक है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो हो गई ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो इतनी थी, ये तो उनके सॉल्यूशंस है सर। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या है फिर, अगर सिर्फ इतनी ही थी तो? सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, वो इतनी तो आपने फिर पूरा डिफाइन नहीं किया। सर पूरा डिफाइन तो किया है सर। पक्का? यस सर। तो फिर बताओ मेरे को क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में, व्हाट टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस है। तो अगर मैं ये कहूँ, सपोज करो मेरा अगर ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि इंडिया के अंदर अभी अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे तो मेडिकल सेक्टर जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, राइट? हाँ या ना? यस सर। तो ये कौन से प्रॉब्लम को सिग्निफाई कर रहा है? ये व्हाट टू प्रोड्यूस है, whom फॉर whom टू प्रोड्यूस है, या हाउ टू प्रोड्यूस है? आई थिंक फॉर whom टू प्रोड्यूस में ये आएगा। फॉर whom टू प्रोड्यूस में आएगा। एनीवन एल्स?
और what to produce. What to produce में what आएगा. to produce. Okay, anyone else? सर हाउ टू प्रोड्यूस, क्योंकि इंडिया के बाद शायद इतनी अभी इंडस्ट्रियल एबिलिटी नहीं है. Okay, anyone else? अब देखो यहीं पे आके ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. मैं बार बार कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो. समझो इस बात को कि जब इंडिया अभी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, जो मेडिकल लाइन के जो चीजें हैं जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ये अभी डोंट यू थिंक कि तीनों प्रॉब्लम का आंसर है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. क्या तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती क्या? यस सर. तो फिर व्हाट टू प्रोड्यूस तो उसी समय आ गया जिस समय कोरोना आया था. क्या प्रोड्यूस करना है? उसी समय हमारे को दूसरा प्रॉब्लम मिला. जैसे ही व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में हमने काम किया कि मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड मेडिकल सारे के सारे चीजें प्रोड्यूस करनी है, वैक्सीन बनाना है, उसी समय सेकंड प्रॉब्लम अराइज हो गया, कैसे बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस. तो फिर डॉक्टर्स के पास गए, सारे प्रोडक्शन हाउसेस जो भी हैं जो ये काम करते हैं, मेडिकल से डील करते हैं, उनसे बात हुई, वो लोग प्रोडक्शन में काम करने लग गए. लेकिन फिर उसी समय थर्ड क्वेश्चन था किसके लिए प्रोड्यूस करना है. ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया के लिए प्रोड्यूस करना है, इसीलिए उसका अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता. इसीलिए कोरोना के केस के अंदर क्या हो रहा है, जो आप अगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाते हो और वहां पर आपको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो आपसे अमाउंट नहीं लिया जाता, गवर्नमेंट से अमाउंट लिया जाता है बिल बना के. राइट, हो रहा है ना? सर हो रहा है. तो ये तीनों प्रॉब्लम्स ही हो गए ना एक ही जगह पर. बट सर कैसे हुआ, क्योंकि अपन को पता है कि किसके लिए बनाना है और क्या बनाना है. प्रॉब्लम यही तो है कि कैसे बनाना है, नहीं, क्योंकि अपने पास इंडस्ट्रियल क्या जब कोरोना आया था तो हमें पता था क्या कि क्या बनाना है? हाँ तब नहीं पता था. ऑब्वियसली. तो फिर क्या उसके बाद हमें पता था कि कैसे बनाना है? वो तो अभी भी आज कंफ्यूजन तो चल हमें रहा है. नहीं पता है हमें अब कैसे बनाना है. हाउ टू प्रोड्यूस के ऊपर हम लोग थर्ड फेज में चल रहे हैं. अगर आप लोगों को प्रॉपर्ली पता नहीं हो तो गेट टू द इंफॉर्मेशन. करंट अफेयर्स में आप अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया की जो मेडिसिन है वो भी थर्ड स्टेज में चल रही है. अब वो पब्लिक के ऊपर, मतलब जो पीपल वॉल्यूंटरीली आगे आते हैं कि आप हमारे ऊपर टेस्ट कर लीजिए मेडिसिन को, उनके ऊपर अभी टेस्ट चलेगा उनका मेडिसिन का, जो वैक्सीन बना है उसका, जैसे रशिया में चल रहा है. एंड द लास्ट पार्ट इज कि फॉर whom टू प्रोड्यूस. तो ये प्रॉब्लम तो था ही कि अगर हम लोग वैक्सीन को बहुत महंगा रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर हम लोग एकदम नीचे वाले रेट पे ले आएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसका क्या इलाज था कोरोना के आते ही? सबसे पहला इलाज था कि अगर कोई कोरोना ग्रसित पाया जाता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो पुअर पीपल है या जो पॉवर्टी लाइन से अंडर स्ट्रिकन पीपल है उनको गवर्नमेंट सुविधा दे. तो दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई एम अश्योर्ड कि जब वैक्सीन आएगा तो उसके अंदर भी कुछ सब्सिडीज आएगी. अगर वैक्सीन का प्राइस बहुत ज्यादा हुआ तो सब्सिडीज लगेगी उसके ऊपर और पुअर को सब्सिडी दी जाएगी कि आपका इतना चार्जेस लगेगा. या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री होगा और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसके चार्जेस लगेंगे. सेम टू सेम एज वैक्सीन. जो बेबी को जब हम लोग लगाते हैं, अगर हम लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाके लगाते हैं तो चार्जेस लगते हैं, गवर्नमेंट में लाइन में लग के लगाते हैं तो हमारे को चार्जेस नहीं लगते. राइट. तो ये जब जो कि ये नया बीमारी था, बिकॉज इट वॉज न्यू टू इंडिया, सो इट अरोज ऑल द थ्री प्रॉब्लम्स. इसने तीनों प्रॉब्लम को स्ट्राइक किया एंड दैट्स व्हाई इट वाज डिफिकल्ट. अब क्या हो रहा है, अब अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर काम कर रहे हैं. हाउ टू प्रोड्यूस का भी सोल्यूशन आ गया है, व्हाट टू प्रोड्यूस का भी सोल्यूशन आ गया कि यही प्रोड्यूस करना है और ऐसे ही प्रोड्यूस होगा और कोई तरीका नहीं है. तो तीसरा प्रॉब्लम जो है फॉर whom टू प्रोड्यूस, अब उसके ऊपर आएगा. क्यों? क्योंकि जैसे ही हमें पता चल जाएगा, हमने जब व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस को सॉल्व कर लिया, कोरोना के केस में वैक्सीनेशन बन गया, तो ये फॉर whom टू प्रोड्यूस वाला प्रॉब्लम कैसे आएगा कि आपको सबको लेना होगा उस इकोनॉमी के अंदर कि उसका जो प्राइस है वो उस रेशियो में रहे कि सब लोग उसको ले सके. क्योंकि वैक्सीनेशन तो सबको चाहिए होगी, सिर्फ एक जन दो जन को देने से नहीं चलेगा. राइट. तो हम लोग ग्रेजुअली मूव किए हैं व्हाट हाउ से अब फॉर whom की तरफ. आई बिलीव एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट. यस सर. राइट. अब मैं एक सवाल करूंगा बिफोर दिस क्लास एंड्स. Yes, what do I say? I am stopping this sharing. Thank you so much, Raghav Modi.
You have done a great job. The PowerPoint presentation was good. The way it was coming and going out, that was superb. We all loved it. I believe we all have liked it. So everyone should give a clap to him. Thank you, sir. Please. Small, what do I say, contributions from our side will obviously make all of us the leaders in the coming time. All right. हम लोग सब कहीं ना कहीं काम करना चाहते हैं. इससे अच्छा अगर हम लोग सब एंटरप्रेन्योर्स बने और लोगों को अपने अंडर रखें, that will be far more better from our side. ठीक है? तो as you all are becoming leaders, hats off. But आगे बढ़ने से पहले I would like to ask one small question. इसी चैप्टर के अंदर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है. कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? जिन्होंने भी वीडियोस ऑफ किया है प्लीज वीडियोस ऑन कर ले वापस. यस, कोई भी मुझे एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक लाइन में? बिकॉज कल आपका पेपर है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का. 30 मार्क्स का पेपर है, आपके जीमेल अकाउंट पे आएगा. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. यस राघव, गो फॉर इट. सर पॉजिटिव इकोनॉमी जहाँ पे मतलब लॉजिक्स को लेके बात की जाती है, डेटा को लेके बात की जाती है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमी जहाँ पे सिर्फ अंदाजे लगाए जाते. अगर आप इसको एक लाइन में समराइज करो तो ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा उस टाइम. तो अगर हम एक लाइन में समराइज करें तो यस अंजलि. The positive economics can be proved, and while normative economics it should be, it ought to be. There is no proof in normative economics. They just suggest. It's a suggestion. We just can suggest, and in positive economics we have facts and surveys to prove our point. Okay. Is there anyone else who would love to add anything to it? Rahul, the mic is saying that please use me. Yes, anyone? Yes, sir. Yeah, Mike is saying please use me. So use it. Give me an example of positive economics and normative economics. Positive economics, I guess, would be deriving some plans for an economy, for the growth No, of not it. at all. That is what is normative economics. Okay, I If mixed up. suppose if I say that in the next 5-year plan, the government should try to give maximum part of their GDP to the education department. Like it is right now 6%, they should give it, increase it to 10%. So what we are saying is they should. This is what ought to be done. So whenever there is a question of what ought to be done, क्या करना चाहिए या क्या किया जा सकता है, so that is normative economics. When we are talking about what is, अभी जो हो चुका है, अभी जो चल रहा है, इसके लिए आपको डेटा, फिगर सब मिल जाएंगे. That is positive economics. ये याद रखना कल जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होता. मैं फिर बता रहा हूँ, ये याद रखना कल जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होता, क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व कर रहे हो. ठीक है? सर वापस बताओ. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? इट्स सिंपल व्हाट ऑट टू बी डन, क्या होना चाहिए. और ये कोई भी डेटा या कोई भी फिगर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वाहिनी का अपना होगा, पलक का अपना होगा, अंजलि का अपना होगा, खुशबू का अपना होगा, देवांशी का अपना होगा, कार्तिक का अपना होगा, हिमाक्षी का अपना होगा. राइट? एवरीवन हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. पूर्तिका का अपना होगा. लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? व्हाट इज, मतलब जो अभी चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने जो कर दिया. अब जैसे अभी मैं आपको करंट सिनेरियो में लेके बताऊं तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था. राइट? अब जब जीडीपी का रेशियो आया है तो ऑपोजिशन चिल्ला रही है कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, स्लोली बट ग्रेजुअली लॉकडाउन करना चाहिए था. मे बी दे आर राइट, परफेक्टली राइट मे बी, कि लॉकडाउन उस समय नहीं करके आगे जाके करना चाहिए था. हम डिबेट कर सकते हैं उसके ऊपर, ये एक डिबेटेबल इशू है. तो ये अगर एक डिबेटेबल इशू है, इसका मतलब ही हो गया कि ये व्हाट ऑट टू बी डन के ऊपर बात हो रही है, व्हाट इज पे बात नहीं हो रही. ओके? तो ये व्हाट ऑट टू बी डन है.
लेकिन लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन लगा, ये एक स्टेटमेंट जो है दैट इज व्हाट इज, दैट इज पॉजिटिव, एंड ये होना चाहिए था, दैट इज नॉर्मेटिव, व्हाट ऑट टू बी डन। अब ये व्हाट ऑट टू बी डन जो है वो सबका अपना अपना आइडिया है, तुम्हारा अपना होगा, मेरा अपना होगा, मैं किसी चीज को सपोर्ट करूंगा, कोई और किसी चीज को सपोर्ट करेगा, राइट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो राघव। सर लॉकडाउन हुआ तब पता तो था ही कि जीडीपी पे असर पड़ेगा। हाँ ये हम तो सबको उसमें पता था, कोई ये मेरे बात को नहीं पता है। है, एवरीवन हैज देयर अच्छा, ओन व्यू पॉइंट, और हमें इसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं करेंगे, लेटर ऑन एक डिबेट सेशन रख लेंगे इसके ऊपर कि लॉकडाउन सही था कि गलत था। चलो 6 महीने बाद बात करते हैं लॉकडाउन सही था कि गलत था। सबके पास अब पॉइंट्स हैं फॉर और अगेंस्ट में जाने के लिए, ठीक है? अब जीडीपी आ गई ना। हाँ सबके पास अपने पॉइंट्स हैं, ऑपोजिशन इसी ऊपर चिल्ला रहा है ना, राइट? वैसे उनको चिल्लाने की जगह नहीं दी जा रही, कोई न्यूज चैनल वाले दिखा नहीं रहे, सब सुशांत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। Everyone is talking about सुशांत सिंह, वो मरा कैसे? How many of you think that was a murder and how many of you think that was a suicide case? सुसाइड केस। अच्छा कौन कह रहा है? खुशबू is saying suicide case. Oh God, she is not watching news, I believe. Actually, she's not watching Arnab Goswami. She is not watching Arnab Goswami for sure. कुछ देखिए ना देखिए, वो तो देखना ही चाहिए। Yes, Rahul, what do you think? It's a suicide case or it's a murder? Sir, it can be a murder, it can be a suicide case. Why नहीं? Yeah, Or this answer is right. I am not expecting this answer. Sir. Please, I don't want people to be in a mixed kind of form. okay, Come on a okay, side. I will be Arnab. Murder ही हुआ है। यही हुआ है, ठीक है, चलो गुड, थैंक यू सो मच। अलग ही है वो तो। भाई, what do you think? Why नहीं? What do you think? Arnab? Information is like murder ही हुआ है। Okay, पलक। Sir, now it's mixed economy we are living in, तो दोनों हो सकता है। पलक, what do you think? सर मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है, चलो बढ़िया। चलो सब Sir, अपने अपने there पॉइंट was- ऑफ व्यू पे। Sir, what do you think? Sir, What do what I do think? you think? I think it's neither the murder nor the suicide. No sir, हाँ तो that's what Rahul said. No, राहुल said दोनों हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ये दोनों ही नहीं हुआ है। क्या हुआ? हाँ तो फिर क्या क्या हुआ हुआ? है? क्या हुआ है सर? तो तो क्या हुआ है सर? Second Arnab Goswami. जिंदा है वो। ये कुछ अलग ही निकालेंगे। नहीं मैं जिंदा बता है रहा सर। हूँ, अब मुझे टाइम दोगे तो मैं बता दूंगा, 1 ही मिनट बाकी है। हाँ बोलो। कि पिछले 1 साल से उस बंदे को बहुत प्रॉपर्ली ड्रग इम्यून बनाया गया, ड्रग खिलाया गया है, ठीक है? तो इट्स अ काइंड ऑफ, बोलते ना, आप उसको तैयार कर रहे हो सुसाइड करने के लिए, दैट यू डू इट। तो वो मर्डर हुआ। Incited suicide. वो मर्डर हुआ। इट इज एन Incited. इंसाइटमेंट, किसी को इम्प्रोवाइज किया गया कि आप ये करो। Sir, ये भी हो सकता है, दिस कैन बी द थर्ड सिनेरियो। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस Sir. हैज बीन डन, दिस कैन बी द थर्ड सिनेरियो। sir, Sushant is dead Yours now. is- But the thing here is कि घर वालों से ज्यादा शौक मीडिया वाले बना रहे हैं। अरे यही तो बात है, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच इज बीइंग हिडन बिकॉज ऑफ दिस। हाँ टीआरपी एक्चुअली टीआरपी ग्रॉसर है, तो ये काम हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस से गलती हो गई, नहीं तो इतना बड़ा सिनेरियो नहीं बनता। उन्होंने कुछ नहीं किया, इस वजह से ये इंडिया का एक टॉकिंग पॉइंट बन गया, ठीक है? सो ओवर हियर वी वुड लाइक टू स्टॉप इट, टुमारो अगेन वी विल मीट, और कल राहुल सिंह पवार एक्सक्यूज मी सर। स्ट्रक्चर को अभी बंद हो जाएगा खुशबू, सर फिर कल करेंगे। थैंक यू सर, I have a question. अभी टाइम